بلیٹن کے آغاز میں ہی آپ کو بتائیں گے 9 مئی کے پرتشدد واقعات پر زور مذمت کی گئی ہے۔ تحریک انصاف کے 9 سابق ایم پی ایز کی قیادت پر کڑی تنقید کی گئی۔ پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ سابق ایم پی اے ظہیر الدین کا کہنا تھا کہ 9 مئی کو جس نے جو بھی کیا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ قومی املاک کو نقصان پہنچانے والے 2 لوگ ہوں یا 200 ان سب کو پکڑا جائے گا۔ جنید انور کی رپورٹ میں دیکھیے۔ تحریک انصاف جنوبی پنجاب کے 9 سابق اراکین صوبائی اسمبلی اپنی اعلیٰ قیادت پر برس پڑے۔ ملتان پریس کلب میں مشترکہ پریس کانفرنس، قیادت پر کڑی تنقید۔ سابق ایم پی اے ظہیر الدین علی زئی کا کہنا تھا کہ 9 مئی کو جو بھی ہوا سب کو پتہ ہے کون سی جماعت ملوث ہے، اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ قومی املاک کو نقصان پہنچانے والے 2 لوگ ہوں یا 200 ان کو پکڑا جائے۔ پارٹی رہنما کیسر مگسی کا کہنا تھا کہ ہم بارش کا پہلا قطرہ ہیں، پورے ملک کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ 9 مئی جیسا واقعہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ فوج ہماری ہے، لوگ جانتے ہیں کہ یہ کس کی سازش ہے۔ کوئی بھی شخص ملک دشمن جماعت کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اس موقع پر سابق ایم پی اے اون حمید ڈوگر، نیاز حسین گشگوری، عبدالحی دستی، علمدار قریشی، اشرف رند، ملک جہاں زیب وارن، ملک مشتبہ میتلا بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ سرگودا ڈی پی اوز کی زیر صدارت پولیس لائنز میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ضلع بھر سے پولیس فورس کی شرکت۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ اجلاس کا مقصد آپ کا مسائل کو جاننا اور ان کے حل کو یقینی بنانا ہے۔ آپ کی ویلفیئر کے لیے محکمہ پولیس ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ ترقی پانے والے ٹریفک پولیس کے افسران کو اجلاس کے دوران رینک بھی لگائے گئے۔ اجلاس کے اختتام پر تمام فورس کے لیے پرتکلف چائے کا اہتمام کیا گیا۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے لڈن میں ڈپٹی کمشنر بہاری سید آصف حسین کی صدارت میں ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس۔ ڈی پی او محمد عیسیٰ خان بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ ممبران امن کمیٹی کی حالیہ پرتشدد واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ ممبران امن کمیٹی کا پرتشدد واقعات میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ امن ترقی اور خوشحالی کی بنیاد ہے۔ ضلع کے لوگوں کا پرتشدد کارروائیوں سے گریز خوشائند ہے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے ملتان میں کسان میلہ سجنے کو تیار ہے۔ قاسم باغ اسٹیڈیم میں تیاریاں عروج پر ہیں۔ مارکی لگ گئی، سٹالز لگنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید دیکھیں گے علی ریاض کی رپورٹ میں۔ شہر اولیا میں کسان میلہ کل سجے گا۔ تیاریاں آخری مراحل میں داخل۔ 3 روزہ میلے کے دوران ملک کی سب سے بڑی زرعی نمائش اور زراعت کانفرنس ہوگی۔ قاسم باغ اسٹیڈیم میں مارکی لگ گئی اور سٹال سجنے کا سلسلہ جاری ہے۔ زرعی کمپنیوں کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ میلے کے دوران کسانوں کو بہت کچھ سیکھنے کے مواقع ملیں گے۔ جتنے بھی فارمرز یہاں آئیں گے انہیں جانوروں کی بیماریوں کے متعلق اور جدید ویکسین، خصوصاً جو کہ ابھی ریسنٹلی لمپی اسکن ڈیزیز آئی ہے اس کی ویکسین کے بارے میں بریف کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی یہ بیماریاں ہیں ان کے بارے میں آگاہی فراہم کی جائے گی، اور یہ لائف سٹاک اور ایگریکلچر فارمرز کے لیے ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے، وہ شامل ہوں اور کسان میلے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ زراعت کانفرنس کے دوران ماہرین فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے مشورے، زرعی کمپنیاں جدید تحقیق بارے کسانوں کو آگاہی دیں گی۔ کیمرہ مین وسیم ریاض کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ اور اب ہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ کپاس کی بہتر پیداوار کے لیے زرعی کمپنیاں متحرک۔ ملتان میں سنجنٹا کمپنی کی زیر اہتمام آگاہی سیمینار، 200 سے زائد کسانوں کی شرکت۔ کمپنی کے نمائندے نے کسانوں کو بہتر پیداوار کے گڑ بتائے۔ فراز رمضان کی رپورٹ دیکھیے۔ کپاس کی بہتر پیداوار کے لیے زرعی کمپنیاں سرگرم۔ سنجنٹا کمپنی کے زیر اہتمام مقامی مارکی میں کپاس کی بہتر پیداوار کے لیے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ 200 کسانوں نے کاٹن سیمینار میں شرکت کی۔ سنجنٹا کمپنی کے نمائندے کا کہنا تھا کہ کسان زیادہ سے زیادہ کپاس کی کاشت کر کے پاکستان کی معیشت کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ آج سنجنٹا کی طرف سے ملتان میں تقریباً 200 کسان بھائیوں کو بلا کے آج ہم نے کاٹن سیمینار کا انعقاد کیا، جہاں ہم نے پورے فارمنگ کمیونٹی کو یہ بتایا کہ کس طرح کاٹن کی نگہداشت اچھی کر کے زیادہ سے زیادہ کاٹن اور اچھی کوالٹی کی کاٹن اگائی جا سکتی ہے۔ ایک مقصد ہمارا فارمرز کو موٹیویٹ کرنا تھا، اور ایک مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ کاٹن اگا کے پاکستان کی معیشت کو بھی سپورٹ کر سکیں۔ سنجنٹا نے ایک نئی مالیکیول ایلسٹل نیو کو بھی متعارف کرایا ہے، جو کہ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ یہ گیم چینجر ہوگا کپاس کی فصل کے حوالے سے، اور آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں ہم انشاءاللہ کپاس کی پیداوار میں ایک اچھا مقام جو ہے وہ حاصل کر لیں گے۔ فارمرز کا کہنا تھا کہ سنجنٹا نے فصل کو سفید مکھی سے بچانے کے لیے ایلسٹل نیو متعارف کروائی ہے۔ سنجنٹا کی بہت اچھی ہوئی ہے، ان کے پروڈکٹ اچھے ہیں، اس چیز کی بہت ضرورت تھی۔ یہ جو دوائی انہوں نے دی ہے، لانچ کی ہے، ہمارے پاس کپاس کی فصل پہ سب سے زیادہ اور اہم مسئلہ وائٹ فلائی کا تھا، اور اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو سب سے بہتر کپاس
बेहतर हो सकती है। कपास की जो फसल है 2 साल से बिल्कुल ख़त्म हो रही जा रही है। ये जो इनका प्रोडक्ट सिजेंटा का भी आया इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। अगर इसमें जान होगी तो ये इंशाल्लाह कॉटन की फसल जो दोबारा बहाल हो जाएगी। फार्मर्स का मजीद कहना था कि सिजेंटा की प्रोडक्शन पहले भी फायदा मंद साबित हुई है, अब एलिस्टल न्यू भी फायदा मंद साबित होगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ फराज रमज़ान, रोही, मुल्तान। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी का अहम इकदाम। डेरा गाजी खान डिवीज़न में जायदाद की रजिस्ट्री बजरिया ई रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया। ज़िला कौंसल हाल में ई रजिस्ट्रेशन बारे रेवेन्यू अफसरान और स्टाफ की ट्रेनिंग का अहतमाम किया गया है। डेप्यूटी कमिश्नर माहर शाद जमान लक ने ज़िला कौंसल हाल में ई रजिस्ट्रेशन सिस्टम का इफ्तिताह किया। रिपोर्ट करें आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान डिवीजन में जायदाद की बजरिया ई रजिस्ट्रेशन का आगाज। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम जिला कौंसल हाल में ई रजिस्ट्रेशन बारे रेवेन्यू अफसरान व स्टाफ की ट्रेनिंग करवाई गई। डिप्टी कमिश्नर माहर शाहिद जमान लक ने जिला कौंसल हाल में ई रजिस्ट्रेशन सिस्टम का इफ्तिताह किया। ट्रेनिंग वर्कशॉप से खिताब करते हुए उनका कहना था कि जायदाद की ई रजिस्ट्रेशन का सिस्टम हुकूमत पंजाब का इनकलाबी इकदाम है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की आवाम को डिजिटलाइज्ड सिस्टम के तहत आसानियां फराहम कर रहा है। अगर डीजी खान आज कंपैरिजन करें तो आपके यहाँ अच्छे रोड्स भी बन रहे हैं, अच्छे एरियाज डेवलप भी हो रहे हैं। ये जो फ़र्क है आपका दूसरे ज़िलों से और सूबों से, वो और ज़्यादा कम होता नज़र आएगा। अगर कल से ये क्वेटा रोड हमारी मुकम्मल हो जाती है, या मोटरवे से लिंक हो जाती है, तो आपका क्वेटा के साथ डिस्टेंस ऐसे ही हो जाएगा जैसे हमारा मुल्तान के साथ एक तलक है। और अगर इस इंडस हाईवे हमारी कश्मीर तक डबल हो जाती है तो और आसान हो जाएगा। ये कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंसेस जो हैं वो कम हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ई रजिस्ट्रेशन के लिए पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी ने वेब पोर्टल बनाया है। इस सिस्टम की बदौलत जायदाद की ट्रांसफर में जाल साजी का खात्मा होगा। तमाम मुतलका अफसरान जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाएं और आवाम को सहूलियात फराहम करें। वो बात जो आप कॉल पे करते हैं वो आप मैसेज से करते हैं। समटाइम वो कॉल जो आप किसी बंदे को समझाने की कोशिश करते हैं, से अभी हमारी पैरा की टीम अगर आपको कोई चीज़ समझाने की कोशिश करेगी, हो सकता है कि वो फॉर द टाइम भी कुछ समझ आए कुछ ना आए, लेकिन अगर आपको व्हाट्सएप के ऊपर, इनकी वेबसाइट के ऊपर, वो अगर यूट्यूब के ऊपर अगर वीडियो मौजूद है या आपके व्हाट्सएप के अंदर चली गई है, तो आप वो अच्छे तरीके से देख सकते हैं, उसको रिपीटेडली देख सकते हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। एडिशनल डायरेक्टर पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी मोहम्मद शफीक चौधरी ने बताया कि नए सिस्टम से सार्फिन ई स्टाम्प वेब पोर्टल से चालान हासिल करेंगे। बैंक ऑफ पंजाब में मुकर्ररा फीस की अदायगी के बाद सार्फिन घर बैठे वसीका लिख सकेंगे। ट्रेनिंग में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रिजवान नजीर, असिस्टेंट कमिश्नर, सब रजिस्ट्रार, रेवेन्यू अफसरान और स्टाम्प फरोशों ने शिरकत की। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जनूबी पंजाब मोहम्मद अल्ताफ बलोच का गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी भावलपुर का दौरा। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर साइका इम्तियाज़ आसिफ ने जारी प्रोग्रामों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। मज़ीद देखेंगे ताहिर जोया की रिपोर्ट में। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जनूबी पंजाब मोहम्मद अल्ताफ बलोच ने बहावलपुर का एक रोज़ा दौरा किया। डायरेक्टर कॉलेजेस मोहम्मद इब्राहिम भट्टी और डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस तस्लीम आलम भी इनके हमरा थे। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन कमीशन ने गवर्नमेंट सादिक गर्ल्स वुमेन यूनिवर्सिटी में तालीमी और तहकीकी सूरत हाल और इंतजामी अमूर बारे इजलास की सदारत की। हमारे साउथ पंजाब में जितने भी हायर एजुकेशन के इदारे हैं, जिसमें कॉलेजेस भी हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, मैं इनका बड़ा एक डिटेल विज़िट पहले भी मैंने किया है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट का। आज भी उसी हवाले से बालपुर आया हूँ। अभी मैंने 2 हमारे कॉलेजेस जो मेल और फीमेल उनका विज़िट किया बड़ा डिटेल अभी यूनिवर्सिटी के अंदर। मकसद ये है कि हमारे इदारे बड़ा वाइब्रेंटली काम कर रहे हैं। एक तो ये है कि इनकी वर्किंग को रिव्यू करना, दूसरा जहाँ इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है, जो पॉलिसी इंटरवेंशन या जो डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है, जो एरियाज़ हम हैं जिसमें हम इम्प्रूवमेंट मज़ीद ला सकते हैं, तो वो इनके साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ। प्रोफेसर साहबान जो है वो अपने मसाइल बता रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं, उनसे बात कर रहे हैं। सेक्रेटरी ने यूनिवर्सिटी के तमाम अमूर पर इत्मीनान का इजहार किया। वाइस चांसलर सादिक वुमेन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर साइका इम्तियाज का कहना था कि नया कैंपस वक्त की अहम ज़रूरत है। हर साल 10,000 एप्लीकेशंस का इजाफा हो रहा है। एजुकेशन का जहाँ तक है, हम 16 BS प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, 10 MS और 6 PhD प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि हम हर साल 10,000 हमें एप्लीकेशंस मिलती हैं एंड वी आर एबल टू एडमिट ओनली 2,000 स्टूडेंट्स।
सेक्रेटरी साहब का विज़िट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट फॉर अस, और हमें तवक्को है और यकीन है he'll support us in getting funding for the construction of blocks in the new campus and for the facilities for our students. सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने गवर्नमेंट एससी कॉलेज की तालिबात के लिए हॉस्टल की तामीर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहा असातिज़ा के लिए भी नई रिहाइशगाहें बनाई जाएंगी। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तारीख रकम कर दी। पंजाब में पहली बार अब पब्लिक स्कूल के बच्चे मुफ्त फ़नी तरबियत हासिल कर सकेंगे। बहावलपुर से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। सरकारी स्कूल के बच्चे मौसम गर्मा की छुट्टियों के दौरान टेक्निकल स्किल सीखेंगे। क्लासेस का आगाज़ 1 जून से होगा। मज़ीद देखेंगे इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की हिदायत पर महकमा इंडस्ट्रीज और स्कूल एजुकेशन का तारीखी इकदाम। सरकारी स्कूलों के बच्चे मौसम गर्मा की छुट्टियों के दौरान टेक्निकल स्किल्स सीखेंगे। 3 माह पर मुहित समर स्किल कैंप का आगाज बहावलपुर से कर दिया गया। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब और डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने आगाही सेमिनार के दौरान तलबा व तालिबात को समर स्किल कैंप से मुतल्लिक बताया। बच्चों को चंद एक जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं एक इंसानी ज़िंदगी की, उसमें कुछ ट्रेड्स हमने वैसे शामिल किए हैं जिनकी मार्केट में ज़रूरत है सर। तो 3 महीने के बाद उनको सर्टिफिकेशन भी होगी और वो इस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर इंटरनेशनल मार्केट में या लोकल मार्केट में इंशाल्लाह उनको अच्छी जॉब मिलेगी और ये महारत जो है वो पूरी ज़िंदगी उनके काम आएगी। वो हर बंदे को तो गवर्नमेंट जॉब दे भी नहीं सकते, ऑलरेडी इतनी ज़्यादा सैचुरेशन है और इकॉनमी में जो है वो सिर्फ एक सेक्टर की वजह से नहीं चल सकती, उसमें हर सेक्टर की ग्रोथ जो है वो बड़ी ज़रूरी है। आप अगर दुनिया की किसी भी बड़ी इकॉनमी को देखेंगे तो वहाँ पे हर सेक्टर जो है वो एक बड़ा प्रोडक्टिव यूनिट के तौर पे काम कर रहा है। हम उन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, स्किल्स प्रोवाइड करेंगे और उनको इस काबिल बनाएंगे कि वो मार्केट के अंदर कोई जॉब करना चाह रहे हैं या कोई इस तरह की इंटरनेशनल लेवल पे या लोकल लेवल पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी अवेल कर सकें। आगाही सेशन में स्कूलों के तलबा व तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। समर स्किल कैंप में बहावलपुर के 2 टेक्निकल कॉलेजेस में बच्चों को फ़नी तरबियत फराहम की जाएगी। प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन सुमेरा सालिया का कहना था कि सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज की हिदायत पर क्वालिटी एजुकेशन फराहम की जाएगी। बहावलपुर के स्कूल और कॉलेज से मजमूई तौर पर 150 से ज़ायद तलबा व तालिबात को 15 कोर्सेज में फ़नी तरबियत फराहम की जाएगी। क्लासेस का आगाज़ 1 जून से होगा। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। सीपैक मंसूबे के 10 साल मुकम्मल। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन डीजी खान कैंप्स में स्टार मून रोड चाइना पाकिस्तान आर्ट्स एक्सचेंज नुमाइश की गई। 100 से ज़्यादा पेंटिंग्स और मुजस्मे नुमाइश में रखे गए। आशिर इशफाक रिपोर्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन कैंपस डीजी खान में सी पैक मंसूबे के 10 साल मुकम्मल होने पर स्टार मून रोड चाइना पाकिस्तान आर्ट्स एक्सचेंज नुमाइश का इनकाद किया गया। एक रोजा आर्ट नुमाइश का इफ्तिताह प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्रोफेसर डॉक्टर यावर ने किया। प्रोफेसर और प्रिंसिपल ने चाइनीज तलबा की मेहनत को सराहा। सी पैक को शुरू हुए आज 10 साल हो चुके हैं, तो उसकी सेलिब्रेशंस के सिलसिले में यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन और जो हुबाई यूनिवर्सिटी चाइना है इनकी कोलैबोरेशन से हमने एक रोज़ा एग्ज़िबिशन का यहाँ पे डेरा गाजी खान में एहतमाम किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की तारीख़ में ये तारीख़ी दिन है कि हम सी पैक के 10 सालों को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी सिलसिले में एक हमने डिस्कशन फोरम रखा और एक आर्ट एग्ज़िबिशन का एहतमाम किया जो लाहौर में हुआ और जिसमें ये सारा जितना भी काम लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है ये हमारे स्टूडेंट्स का है जो चाइना से हमारे यहाँ पढ़ने आए एमफिल और पीएचडी के। एक रोज़ा आर्ट नुमाइश में यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, गाजी यूनिवर्सिटी के तलबा और मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की और चाइनीज़ तलबा की मेहनत को सराहा। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में चाइनीज़ एग्ज़िबिशन चल रही है और यहाँ डिफरेंट स्केचेस और पेंटिंग्स हैं और उम्मीद करते हैं ये एग्ज़िबिशन यूँ ही चलती रहेगी। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन और चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान एक कोलैबोरेटेड प्रोग्राम के तहत आर्ट्स के नमूने पेश किए गए हैं। यहाँ पे 100+ आर्ट्स नमूने जो हैं वो मौजूद हैं जिसमें मुजस्मे हैं और पेंटिंग्स और स्केचेस वगैरह हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ये स्कल्पचर्स और इस तरह की दीगर नुमाइशें वगैरह जारी रहेंगी जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। एक रोज़ा आर्ट नुमाइश में 100 से ज़ायद पेंटिंग्स और मुजस्मे रखे गए। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे रहीम खान इंतजामिया मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतहरिक एडमिन गढ़ के मकाम पर मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मज़ीद देखेंगे आमिर भट्टी की रिपोर्ट में। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।